Hello dear children, welcome once again to your channel Computer Science with Meena Dogra. Hope all of you are doing great. Hope आप सब अच्छे से होंगे. और in this video what I'm going to take up, I'll be taking up part 4 of the Let Us Learn series that I started for methods of string objects of Python shortly. 3 parts are already available on the channel. I'll give their links in the video's description. Do watch them. Fine, and let's see what are we going to learn in part 4 now. Fine, so these are the 4 functions that we are going to learn: index, r-index, find, r-find. So you can see if it's index, here I've written r-index, and if it's find, here I've written r-find. So these are related methods. Index and find are similar with just a single point of difference. Similarly, r-index and r-find are similar with just one point of difference. So this, just because of these striking similarities and very little and same similarities, striking similarities and just one dissimilarity, I've clubbed them together in this video. And I would request all of you to first of all listen to these two carefully, because if these two you've understood, that is index and r-index, understanding these would be very simple. Fine, so let's get into the video now and let's see what the first method has to say. Fine, so the index method, ठीक है ना. इंडेक्स क्या होता है, यू ऑल नो. जो स्ट्रिंग पर हम लोग पाइथन जो है अपने सारे सीक्वेंसेस को, लाइक स्ट्रिंग्स, टपल्स, लिस्ट, सबको इंडेक्स मार्क करता है. ऑर्डर्ड कलेक्शंस होते हैं, लाइक इट बिगिंस फ्रॉम द लेफ्ट साइड फ्रॉम 0 till length of the string -1 or length of the sequence -1, and from the right side it marks from -1 to -len of that particular sequence. Fine, so हम यहाँ बात करें इंडेक्स, उसी को ध्यान में रखते हुए डिस्क्रिप्शन समझने की कोशिश करना. इंडेक्स मेथड रिटर्न्स द इंडेक्स. इंडेक्स एक इंटीजर वैल्यू होती है, सो इसमें या तो इट विल रिटर्न द इंडेक्स. फाइन, इंडेक्स एक इंटीजर रिटर्न करेगा डिनोटिंग द इंडेक्स. वो इंडेक्स किस चीज का होगा? दैट विल बी एन इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट अकरेंस. पहली बार जहां भी वो मिलता है. क्या मिलता है? फर्स्ट अकरेंस ऑफ अ सब स्ट्रिंग इन द गिवन स्ट्रिंग. सो अगर एक स्ट्रिंग है, उसमें उसका एक पार्ट, सब स्ट्रिंग क्या होता है? पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग. एक स्ट्रिंग के अंदर where does a substring occurs for the first time, वो इंडेक्स पोजिशन ये मेथड रिटर्न करता है. ठीक है, एंड इट इज केस सेंसिटिव. फाइन, अब बात करते हैं, इफ द सबस्ट्रिंग इज नॉट फाउंड इन द स्ट्रिंग, देन इट विल नॉट रिटर्न एनी इंटीजर. इट इज गोइंग टू गिव यू वैल्यू एरर एक्सेप्शन. Index method raises value error exception if the search for the substring fails. If there's the substring is not found in the main string, value error exception will be raised by index method. And if the value is found, it is going to tell you the first occurrence of that substring in the string. Fine, first occurrence को आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, that will be the lowest index. Lowest index अगर आप इसको डिफॉल्ट बिहेवियर के अकॉर्डिंग लेते हो तो लोएस्ट इंडेक्स. बाकी यू कैन सेट द बाउंड्रीज कि आपको सर्च कहाँ से कहाँ तक करनी है, वहां पर वो इंडेक्स उन बाउंड्रीज के अकॉर्डिंग भी सबसे पहला इंडेक्स होगा. सो इट इज गोइंग टू बी मोर क्लियर एज यू विल सी इट प्रैक्टिकली, बट बिफोर दैट मेन थिंग वी शुड नो द सिंटैक्स ऑफ this thing index method. So now I'll first of all take up the syntax beta. Fine, so this is index method and here the syntax goes as follows. So this is str, the string object with which you are going to call this index method, and there are 3 arguments: sub, start, end. जो पार्ट 3 का वीडियो था, स्टार्ट्स विद एंड्स विद, उसमें मैंने ये बताया था कि इफ इन अ सिंटैक्स एनीथिंग इज गिवन इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, देन गिविंग दैट थिंग इज ऑप्शनल. दैट्स नॉट एन ऑप्शनल, दैट्स नॉट अ मैंडेटरी पार्ट. सो ऑप्शनल है, स्टार्ट और एंड देना जरूरी नहीं है, बट सब, क्योंकि ये डायरेक्टली लिखा है विदाउट एनी स्क्वायर ब्रैकेट्स, मिनिमम 1 आर्ग्यूमेंट आपको उसको प्रोवाइड करनी है. सो देखते हैं इन सारे आर्ग्यूमेंट्स के मीनिंग क्या क्या हैं. सो लेट्स सी व्हाट str is the invoking string object. So when I say invoking, I'm meaning the calling string object. किस string के लिए? जो आपकी main string है, जिसके लिए आप इस मेथड को कॉल कर रहे हो, इंडेक्स मेथड को यूज कर रहे हो, ताकि आप उसके अंदर एक सब स्ट्रिंग की स्टार्टिंग लोकेशन को जान पाओ. ठीक, so that is the invoking string object. Then sub, which stands for sub, here stands for substring. Fine, which is mandatory parameter. What you are trying to search, क्या search कर रहे हो आप एक main string के अंदर, in order to know the index of its first occurrence in string str. So substring to be searched in order to know the index of its first occurrence. कहाँ पर वो lie करती है सबसे पहली बार वो substring एक string के अंदर,
ठीक है, वो आप मेंशन करोगे, वो सब स्ट्रिंग जिसे आपको ढूंढना है स्ट्रिंग के अंदर, ताकि आप उसका फर्स्ट अकरेंस पता लगा पाओ, फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पता लगा पाओ. देन यू हैव द स्टार्ट. ठीक है ना, स्टार्ट आर्ग्यूमेंट इज ऑप्शनल. इट इज लाइक यू नो व्हेन यू डोंट गिव इट, फाइन, अगर आप खाली सब देते हो तो इट स्टार्ट सर्चिंग फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द स्ट्रिंग. फाइन, स्टार्टिंग इंडेक्स पोजीशन बिगनिंग से ढूंढता है. बट अगर आप इसे दे देते हो तो आप clearly explicitly you tell, look, I want to search from this particular index. So you kind of define a window within which you want to search your substring. So starting index position आप दे सकते हो कि कहाँ से ढूंढना शुरू करना है, instead of using 0 which is the default value. Fine. Then we have this end argument which is also optional. जैसे start है, start को opposite end है, so till where do you want to search the substring in the string, कहाँ तक substring को ढूंढना है, that you mark as end. So अब इसमें एक बात ध्यान रखना, if you want to search, say for example you want to search between 5 from 5 to 10, so आप end को 11 लिखोगे, because जो end value अगर आपने 11 लिखा तो वो 10 पर रुक जाएगा. तो जहाँ तक आपको ढूंढना है उससे एक एक्स्ट्रा end value में मेंशन करते हो. And if you do not give end, then by default length of the string is the value of the end argument. Length of the string यानी 10 letters की अगर string है तो आपको पता है उसका highest index 9 होगा, highest positive index 9 होगा. So 9 पर वो रुक जाएगा. So end value is excluded. Fine. So अब देखते हैं इनके कुछ examples, and here I've taken this string which is like strings in Python. This is what I've taken as an example, and I've marked the index positions children from 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर 16 तक. I've marked all the characters. Fine. And now we are going to try out these examples practically and see like what output they will produce. फाइन. सो उसके लिए मैंने पाइथन को विंडो को थोड़ा सा मिनिमाइज कर लिया, सो दैट यू नो आई कैन शो यू ओवर हियर राइट हैंड टू हैंड. एंड इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, व्हाट यू कैन डू, कॉपी डाउन द एग्जांपल एंड राइट द आंसर एज इट इज. सो फर्स्ट आई विल क्रिएट माय स्ट्रिंग दैट इज strings in Python. This is what I'm going to create now. This is my string object. Fine, I can check its type quickly using the type function. Type of S. Python is going to tell me it belongs to class str. Now I'll start giving one example, one by one each example. So focus on the first example, which is s dot index of n, small n. I told you ना it's case sensitive. So see, अब यहाँ देखो, आउटपुट देखने से पहले हम खुद निकालने की कोशिश करते हैं. Mark the places where n is appearing. Fine. Mark the places where n is appearing, बच्चा. So n is appearing. ऐसा चलो यहाँ देख लेते हैं पहले. N is appearing here, here and here. अब मार्क करो, आपने ना स्टार्ट नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट वो 0 से ढूंढना शुरू करेगा. तो फर्स्ट अकरेंस कहाँ आएगी इसकी, जस्ट चेक, 4th इंडेक्स पर. ये फर्स्ट टाइम अकर कर रहा है n. फाइन, फर्स्ट अकरेंस. तो ये एक इंटीजर होता है, तो जब आप एंटर करोगे, सी द आंसर इज द आउटपुट दैट इंडेक्स मेथड हैज रिटर्न्ड इज 4. दैट इज वेयर इज n appearing first of all in this string invoking object s. सबस्ट्रिंग की वैल्यू स्मॉल n और केस सेंसिटिव मैचिंग है, स्मॉल n इसके अंदर है, वो आपको स्मॉल n की पहली अकरेंस का इंडेक्स पोजीशन रिटर्न कर देगा. ठीक है ना, दैट वाज सो सिंपल. नाउ लेट्स ट्राई द नेक्स्ट वन व्हिच इज s डॉट इंडेक्स ऑफ i. तो फिर अब आप देखो, i आपका 3rd इंडेक्स पर है, 8th इंडेक्स पर है. सो यू कैन क्विकली टेल मी, अगर हम स्टार्ट एंड नहीं दे रहे तो बिगनिंग से सर्च करेगा एंड इट इज गोइंग टू रिटर्न द फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन वेयर i इज देयर, व्हिच इज इंडेक्स पोजीशन. आप देखो i की इंडेक्स पोजीशन क्या है बच्चा, i की इंडेक्स पोजीशन है 3. सो लेट्स जस्ट अ मिनट बेटा, हाँ, सो लेट्स जस्ट क्विकली प्रेस एंटर एंड सी. देखो 3 आ गया ना, ठीक है ना. नेक्स्ट एग्जाम्पल, s डॉट इंडेक्स ऑफ कैपिटल S. नाउ इट्स केस सेंसिटिव एज आई टोल्ड यू. सो इस एग्जाम्पल में आप देखो आपके पास कैपिटल S भी है और स्मॉल s भी है, बट कैपिटल S विल मैच only capital S and small s will match only small s. Fine. So capital S, it's appearing at the very first index position which is 0. और यही इसका आंसर होगा, दैट इज द इंडेक्स पोजीशन विद कैपिटल S इज बीइंग फाउंड. फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, इट्स नॉट नेसेसरी कि मैंने कुछ कैरेक्टर्स, आई हैव टेकन सर्टेन कैरेक्टर्स इन दिस एग्जांपल व्हिच आर रिपीटिंग लाइक n, लाइक i, लाइक in, बट इट्स नॉट पॉसिबल कि सारे ही कैरेक्टर्स रिपीट हो रहे हो लेजिबल स्ट्रिंग में. सो अगर एक ही बार है तो वही आंसर होगा, और मल्टीपल टाइम्स है तो जहाँ वो पहली बार ही वेयर इट्स अपेयरिंग वो आंसर होगा बेटा. ठीक. नेक्स्ट लेट मी
टेक द नेक्स्ट एग्जाम्पल नाउ स्मॉल एस. एनी गेसेस? यू विल बी आप बहुत जल्दी गेस कर जाओगे व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस वन. इट्स गोइंग टू बी 6. स्मॉल एस आपका 6th इंडेक्स पोजिशन पर है बेटा. और लेट्स चेक फॉर स्मॉल पी नाउ. फाइन द नेक्स्ट वन विच इज स्मॉल पी. अब देखो स्मॉल पी इस स्ट्रिंग में कहीं नहीं है. देयर इज ओनली वन पी विच इज इन कैप्स. फाइन अपर केस में है. सो अगर इसको सबस्ट्रिंग नहीं मिलता, इफ इट इज नॉट एबल टू लोकेट द सबस्ट्रिंग in the string, then it gives you value error. So see, value error because of this value p. किसकी वजह से value, इस जो value आपने इसको दी small p, उसकी वजह से it failed, है ना. It couldn't locate it. So that is why because of this value, जब भी error value की वजह से आता है, Python raises value error. function को जो आप value दे रहे हो, वो उस function उस पर work नहीं कर पा रहा. And what's the description? See, substring not found. P that you have given as a substring is not found in S. Fine. Let's take the next one, children, which is like मैं n वाली ही string copy कर लेती हूँ now because I want to show you how start works. So n, 4. फाइन. n, 4 बेटा. अब देखो, अब इसमें आप क्या करोगे, ध्यान रखना. n जो है 4th इंडेक्स, स्टार्ट आपने दे दिया 4th इंडेक्स पर ही n है. मतलब स्टार्ट अब 0 से नहीं ढूंढना शुरू करेगा, वो 4th पोजीशन से ढूंढना शुरू करेगा. एंड एट द वेरी 4th, मतलब एट दिस वेरी पोजीशन, द 4th इंडेक्स पोजीशन n इज देयर. सो स्टार्ट तो इंक्लूडेड होता है ना सर्च में, एंड एक्सक्लूडेड होता है. सो द आंसर वुड बी 4 ओनली बिकॉज ये 4th इंडेक्स पर ही लाइक कर रहा है. बट अबाउट द नेक्स्ट वन, इफ यू ट्राई दिस वन n, 7. If you give this n, 7, see बच्चा, it is going to start from here now, from 7th index position it's going to start. आप इंडेक्स पे देखना, मैंने deliberately लिखे हैं यहाँ, और मैं deliberately इस विंडो को मिनिमाइज करूँ so that you know I can show you the index also side by side. So 7th index से आप ढूंढना शुरू करो. n 2 बार आ रहा है बच्चा, once at 9th index position, once at 16th index position, और आपने एंड नहीं दिया है ना, सो इट इज गोइंग टू कंसिडर टिल द एंड ऑफ स्ट्रिंग. फाइन. सो अब पहली अकरेंस कहाँ है इनकी 7th इंडेक्स पोजीशन से? इट्स एट 9th इंडेक्स. सो द आंसर वुड बी 9. Okay, so I hope this is clear. Let's take these the examples on the right hand side now. Let's quickly check these. Now what I'll do, I'll be using the end parameter also. So 7, 10 if I give. Now see, 7, 10 means you will be searching from 7 to 9 because end is excluded. So over here it would be 10 minus 1, 9. So 7, 8, 9. इसमें देखो आप n किस जगह आ रहा है. n is first time कहाँ आ रहा है? It's appearing only once at 9th index position. So that is going to be your answer. Fine. Now let's take up a more than one character substring. ऐसा तो नहीं कि एक ही letter search करेगा. It can search for any substring. Substring can be made up of 1 character, 2 characters or any number of characters. Fine. अब इन को ढूंढना है. सो अब आप देखो यहाँ पर इन जो है बेटा, ये 3, 4 पोजीशन पर आ रहा है. यहाँ 3, 4 इंडेक्स पोजीशन पर आ रहा है. इन आपका 8, 9 इंडेक्स पोजीशन पर भी आ रहा है. ठीक है. आप ढूंढना कहाँ से शुरू कर रहे हो? अच्छा, पहले इनको हमने ढूंढा है, पहले इस एग्जाम्पल में इनको हम बिगनिंग से ढूंढ रहे हैं. सी दिस एग्जाम्पल 7, 10 के नीचे 1. ठीक है ना. राइट हैंड साइड सेकंड एग्जाम्पल, इनको वी आर सर्चिंग. सो व्हेन वी आर नॉट मेंशनिंग स्टार्ट, इट विल सर्च फ्रॉम बिगिनिंग. और बिगिनिंग से इनका, ये नहीं कि आई एन दोनों को, इन स्ट्रिंग किस इंडेक्स पोजीशन से स्टार्ट हो रही है बच्चा? 3rd इंडेक्स पोजीशन से. सो द आंसर वुड बी 3. ओके फाइन. हाँ, अब अगर मैं स्टार्ट चेंज करती हूँ, मैं कहती हूँ आई डोंट वांट टू सर्च फ्रॉम 0th पोजीशन, आई सर्च फ्रॉम 5th इंडेक्स ऑनवर्ड्स. सो 5th से एंड नहीं मेंशन करते तो लास्ट तक सर्च करेगा. ठीक. सो 5th से आप देखना शुरू करो, 5, 6, 7, 8, 9. ठीक है ना. यहाँ पर इसको 8th इंडेक्स पोजीशन पर इन मिल गया. पहली बारी जहाँ इन मिला, आगे भी इन हो सकता था. वी डोंट केयर, Python will not care for that because उसको तो जहाँ पहली बारी, wherever it will find it for the first time, it's going to stop there and give you the index position. Any guesses for the answer? I'm sure all of you must have guessed it by now. It's going to be 8. इन कहाँ शुरू हो रहा है? 8 पर. ठीक है ना. अब बात करते हैं थोड़ी इनको. अब हम ढूंढते हैं रिंग. ओके, सो आई एम गोइंग टू सर्च नाउ रिंग. RING. एज आई टोल्ड यू, सबस्ट्रिंग बड़ी भी हो सकती है. सो रिंग आप ढूंढो. रिंग है स्ट्रिंग्स के अंदर. स्ट्रिंग्स के अंदर देखो रिंग, दिस इज प्लेस वेयर रिंग इज देयर. RING 2, 3, 4, 5 इंडेक्स पोजीशन तक है. फाइन. सो और कहीं रिंग है नहीं. सो दिस इज द फर्स्ट टाइम इट्स अपेयरिंग. आंसर, रिंग का स्टार्टिंग कैरेक्टर, जस्ट चेक वेयर इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम. इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स पोजीशन 2. सो द आंसर ओवर हियर विल आल्सो बी 2. फाइन. नेक्स्ट इज S डॉट इंडेक्स ऑफ I. एंड I को हम कहाँ से ढूंढ रहे हैं बेटा? We are searching it from I from 6th, 11. Okay, let's mark 6th position. ये रही हमारी.
6 से 11 मीन 6 to 10 तक ढूंढेगा, ठीक है ना, 6 to 10 तक, इधर से देखो 6 to 10, 6 7 8 9 10, और कहाँ मिल रहा है आपको y, 8th इंडेक्स पोजीशन पर, फाइन। सो इसका आंसर होगा 8, फाइन। अब अगर आप 6,8 कर दो, ठीक है ना, 6,8 का मतलब क्या हुआ बच्चा, n तो एक्सक्लूड होता है, सो s एंड स्पेस 6,8 इंडेक्स पोजीशंस क्या बनेंगी, 6 and 7, 6 and 7 पर i इज नॉट देयर। अगर आपको i को ढूंढना था तो एटलीस्ट i के इंडेक्स से एक एक्स्ट्रा आपको यहाँ देना चाहिए था, दैट इज either you should have mentioned 9, it would have worked, but when you're giving 8 only, 8 means Python will stop searching till at 7, 8 minus 1 7, and at 6 and 7 index positions Python will not be able to locate small I, and that is why Python will raise value error. Fine. So I hope these examples are clear to all of you, and अब आपको अगर ये अच्छे से समझ में आ गया है तो बढ़ चलते हैं R इंडेक्स की तरफ। नेक्स्ट मेथड इज R इंडेक्स। एक ही चेंज है, दो चेंजेस हैं, एक तो इंडेक्स से पहले R लग गया, ठीक, राइट वर्ड याद रखना, राइट, और इट विल रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द लास्ट अकरेंस, हाईएस्ट इंडेक्स पर जिस पर स्ट्रिंग में वो सब स्ट्रिंग लाई करता है। लास्ट इंडेक्स वाज first occurrence, R index is last occurrence of a substring in the given string. So जैसे हम n ढूंढ रहे थे, n was at 3 places. R मतलब index return the first position where it was found. R index will return the last index position where n will be there in the string. And this too is case sensitive. Highest index वो lowest index return करता है, ये highest index return करता है, वो left से work करता है, ये right से work करता है. And if the substring is not found, R index will also give you value error exception. Fine. So इसके syntax की मैं details में इसलिए नहीं जाऊंगी because simple है, R index देख लो, इसी तरीके से देना है, substring start end, आपका str इन्वोकिंग स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट होगा, R इंडेक्स फंक्शन का नाम है, सबस्ट्रिंग मैंडेटरी है जिसमें आपको ढूंढना है, लेकिन अब चेंज क्या आया कि आपको लास्ट अकरेंस पता लगा, यू वांट टू नो द इंडेक्स ऑफ द लास्ट अकरेंस ऑफ द सबस्ट्रिंग इन str, देन स्टार्ट अगेन इज ऑप्शनल, इफ यू डोंट गिव इट विल बी searching will begin from 0th position, but you can mark the starting position explicitly by mentioning the start index. Fine. Again, end ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट, एंडिंग पोजीशन टिल वेयर यू वांट टू सर्च इन द स्ट्रिंग, एक एक्स्ट्रा आपको देना होता है बिकॉज एंड वैल्यू एक्सक्लूडेड होती है। इफ द एंड वैल्यू इज नॉट प्रोवाइडेड बाय डिफॉल्ट, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विल बी टेकन एज द वैल्यू ऑफ end argument. So it's all same. As I told you, the difference is here. First difference is it's R index now instead of index, and the second difference, it's the last occurrence instead of first occurrence. Fine. So let's quickly take up these examples on the same string, strings in Python. Let's try out these examples बच्चा. Fine. So अब हमारी वो string तो created है ना? So I'll just quickly put it over here and start S को दोबारा से सामने रख लेते हैं आंखों के, और अब हम देखते हैं S डॉट लगा के जब आप वेट करते हो, you are obviously shown all the, ये रहा R इंडेक्स आपका, R इंडेक्स ऑफ n। देखो अब आप मुझे बताओ इंडेक्स का आंसर क्या था बच्चा? इंडेक्स का आंसर था इधर देखो 4, इंडेक्स ने आपको 4 दिया था, n यहाँ है, ठीक है ना। अब लास्ट अकरेंस n की किस जगह है? दैट इज 60। फाइन। सो लास्ट अकरेंस द आंसर विल बी 60। फाइन, समझ में आ गया होगा, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। तो जल्दी बाकी के एग्जाम्पल्स भी ट्राई कर लेते हैं। आर इंडेक्स ऑफ आई को मार्क करो, आई था 3rd इंडेक्स पर और 8th इंडेक्स पर। व्हाट्स द आंसर? वी आर गेटिंग 8। फाइन, बिकॉज लास्ट अकरेंस बताएगा, ठीक है ना। एस डॉट आर इंडेक्स ऑफ कैपिटल एस, दिस इज गोइंग टू रिमेन 0 ओनली। क्यों? क्योंकि कैपिटल एस एक ही जगह है, जब एक ही बारी एलिमेंट होता है वही उसका लास्ट इंडेक्स होता है, वही उसका फर्स्ट इंडेक्स होता है। सो द आंसर इज 0। अब स्मॉल एस देखते हैं। अगेन स्मॉल एस इज लाइक it's appearing only once in the string at 6th index position, so the answer would be 6 for index as well as R index। वही फर्स्ट इंडेक्स है, वही लास्ट इंडेक्स है। डिफरेंस आपको कहाँ दिखेगा बच्चे? डिफरेंस आपको दिखेगा जब वो कैरेक्टर मल्टीपल टाइम्स है, then you will be able to know the difference between index and R index। Fine. Again, case sensitive matching is small p is not there in the string at all. Python will raise value error। Same। Fine. Next, R index। अब हमें स्टार्ट से सर्च नहीं करना, आई वॉन्ट टू स्टार्ट सर्चिंग फ्रॉम n, फ्रॉम द 4th इंडेक्स। आई वॉन्ट टू सर्च n फ्रॉम 4th इंडेक्स। दिस एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग अबाउट n फ्रॉम 4th इंडेक्स। सो अब देखो आपने ये स्टार्ट मार्क किया, n नहीं दिया तो ये आपका एंड है,
ठीक है ना। फोर्थ इंडेक्स से भी आपका एंड तक कहाँ पर आ रहा है, एंड 16th इंडेक्स पर बच्चा, ठीक है ना। सो इसका भी आंसर क्या होगा बेटा, 16। फाइन। अब यहाँ थोड़ा सा चेंज देखो, हमने यहाँ पर स्टार्ट भी मेंशन किया है और स्टॉप भी मेंशन किया, मतलब एंड भी मेंशन किया। सो 4,7 मीन्स व्हाट, 4,7 मीन्स 4, 5, 6 इधर ढूंढेगा, ठीक है ना। 4, 5, 6, 7 को तो एक्सक्लूड करेगा। सो आपको यहाँ फोर्थ इंडेक्स पर ही एन मिल रहा है, ठीक है ना, सिंगल टाइम आ रहा है इस रेंज में। सो आंसर 4 ही होगा। फाइन। सो ये वाले एग्जांपल्स हो गए। लेट्स मूव, अब राइट साइड वाले एग्जांपल्स ट्राई करते हैं। राइट साइड वाले एग्जांपल्स क्या कह रहे हैं बच्चा, लेट्स सी। आर इंडेक्स अब हमने कर दिया 10 तक, ठीक। सो 4 से 10 तक अब आप देखो, 4 से 10 मीन्स 4 to 9, एक बारी फोर्थ इंडेक्स पर आ रहा है, एक बारी 9th इंडेक्स पर आ रहा है। जस्ट मार्क द लास्ट अकरेंस, लास्ट अकरेंस इज एट इंडेक्स 9, सो हेयर द आंसर विल चेंज टू 9। Python will return 9 क्योंकि fourth index and 9th index में से last occurrence is at 9th index. Fine. Next, let's move to s dot r index of in. Okay, we move to in. Now in is appearing twice, है ना, at third, fourth index. देखो यहाँ पर in आपका थर्ड फोर्थ इंडेक्स पर आ रहा है और in आपका 8th 9 इंडेक्स पर आ रहा है। in the absence of start शुरू से दिखेगा और in the absence of end तक दिखेगा। आपको आंसर मिलेगा 8 बिकॉज इन की लास्ट अकरेंस है 8। लेट्स एंटर, यू गेट 8। फाइन। अब इनको ढूंढते हैं, वी स्टार्ट लुकिंग फॉर इन फ्रॉम फिफ्थ इंडेक्स। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल में हमने इनको फिफ्थ इंडेक्स से ढूंढा बच्चा, तो हम ये थर्ड फोर्थ वाला इंडेक्स को क्रॉस कर चुके हैं फिफ्थ इंडेक्स से एंड तक। सो इट इज गोइंग टू, इट्स अपियरिंग ओनली वंस इन दिस रेंज, फिफ्थ इंडेक्स ऑनवर्ड्स इन इज अपियरिंग ओनली वंस एट स्टार्टिंग एट इंडेक्स पोजीशन 8। सो व्हाट विल बी द आंसर, 8। फाइन। आई होप अब आपको क्लियर हो रहा होगा, है ना। अच्छा, अब रिंग ढूंढते हैं। वही एग्जाम्पल्स आई हैव टेकन, फाइन, सो यू नो यू कैन रिलेट दीज टू। रिंग, रिंग एक ही बारी है बच्चा, एक ही बारी है तो इसका आंसर 3 होगा। फाइन, क्योंकि सॉरी 2, बिकॉज रिंग स्टार्ट हो रहा है सेकेंड इंडेक्स पोजिशन से, आंसर इज 2। और अब हम आई को ढूंढते हैं। आई को अगर हमने ढूंढा कौन सी पोजिशन से, एग्जाम्पल में 6,11, 6,11. So start mark the 6, 7, 8, 9, 10. So एक ही बारी आ रहा है at 8th index, I is appearing at 8th index. So the answer is 8. और अगर आप 6,8 कर दो I को, so let's see what's going to happen. As I told you, 6,8 means 6, 7 पे ढूंढेगा, I उसको मिलेगा नहीं बचा, तो Python will return value error. Fine. So I hope इंडेक्स और आर इंडेक्स के एग्जाम्पल्स आपको क्लियर हो गए होंगे। बढ़ते हैं अपने थर्ड फंक्शन की तरफ, विच इज फाइंड फंक्शन। एज आई टोल्ड यू, फाइंड और इंडेक्स की वर्किंग बिल्कुल सेम है। फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ो। फाइंड रिटर्न्स, फाइंड मेथड रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ अ सबस्ट्रिंग इन द गिवन स्ट्रिंग, केस सेंसिटिव। फाइंड फर्स्ट अकरेंस को रिटर्न करेगा, सबस्ट्रिंग के फर्स्ट अकरेंस को मेन स्ट्रिंग में केस सेंसिटिव होगा। डिफरेंस यहाँ आता है, अगर स्ट्रिंग नहीं मिलती तो इंडेक्स यूज टू गिव यू एन एरर, वैल्यू एरर एक्सेप्शन, बट फाइंड आपको एरर नहीं थ्रो करेगा, फाइंड इज गोइंग टू रिटर्न यू -1। इफ फाइंड fails to locate a substring in the string, it is going to return -1. सो फाइंड का आउटपुट एक इंटीजर ही होगा। अगर वैल्यू मिलती है, सबस्ट्रिंग इज फाउंड, first position where it is being found, first index position, and if it is not found, it is going to return -1. फाइन, सो दिस इज द डिफरेंस बच्चा। तो इसके एग्जाम्पल्स मैं कंबाइंड लूंगी। पहले फाइंड का सिंटैक्स आई होप मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इंडेक्स की तरह है। 3 आर्ग्यूमेंट्स है, सब, स्टार्ट, एंड। str हमारा इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट है, सब हमारा मैंडेटरी पैरामीटर है, सबस्ट्रिंग जिसकी हमें फर्स्ट अकरेंस ढूंढनी है स्ट्रिंग के अंदर। फाइन, इन्वोकिंग स्ट्रिंग के अंदर स्टार्ट हमारा, अगेन कहाँ से सर्चिंग स्टार्ट करनी है, इफ वी डू नॉट गिव इट बाय डिफॉल्ट बिगनिंग से होगा, एंड कहाँ तक सर्च करना है सबस्ट्रिंग को स्ट्रिंग में, इफ यू डोंट गिव इट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इसका आर्ग्यूमेंट, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होगी, एंड वैल्यू एक्सक्लूड होगी। सो मैं बिना एग्जाम्पल लिए पहले आपको जल्दी से आर फाइंड भी बता देती हूँ, ताकि मैं दोनों की कंबाइंड एग्जाम्पल्स आपके लिए लूंगी। सो आर फाइंड मेथड अगेन इज लाइक आर इंडेक्स, बट जस्ट वन डिफरेंस, आप पता कर चुके होंगे अब तक क्या होगा। आर इंडेक्स ऑल्सो, आर फाइंड ऑल्सो लाइक आर इंडेक्स विल रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द लास्ट अकरेंस ऑफ द सबस्ट्रिंग इन द गिवन स्ट्रिंग,
लास्ट अकरेंस बताएगा, हाईएस्ट अकरेंस बताएगा, केस सेंसिटिव होगा, बट वैल्यू एरर नहीं देगा. द सब स्ट्रिंग is not found in the it could not be found in the main string, then it is going to return -1 instead of raising value error exception. So error नहीं आती इसमें. That is why it's better to use find and rfind. Fine. Let's take up the syntax again. मैं बहुत जल्दी से syntax explain कर देती हूँ because it is going to be redundant. rfind method है, again str invoking object है, सब string mandatory parameter है जिसकी आपको क्या ढूंढनी है, last occurrence in the string. Fine. Again start optional है, default searching 0 से शुरू होती है, आप अपना you can provide your start value explicitly. End index is also optional, you can provide it explicitly using this. If you do not mention, then default आपका होगा end of length of the string and this end value will be excluded. So as we are heading towards the end of this video, let's quickly try out these examples directly for find and rfind. This is a combined slide for it. S को एक बारी फिर अपने सामने ले आते हैं, and now instead of s dot index I will write s dot find and I will start locating n in the string. n again 3 जगह है बेटा, 4th index, 9th index, 16th index. आंसर क्या होगा, 4. फर्स्ट अकरेंस बताएगा. फाइन. आई क्विकली डू दी अदर वंस ऑल्सो फॉर यू. आई, ठीक है, 3rd इंडेक्स पर है, 8th इंडेक्स पर है, आपके स्क्रीन पर है इस समय, देखो इंडेक्स पोजिशंस. सो आंसर वुड बी 3. फाइन. पहली बार जहां आई मिलता है. कैपिटल एस, अगेन इट इज एट 0th इंडेक्स, सॉरी कैपिटल एस इज एट 0th इंडेक्स बच्चा. सो वही उसका आंसर होगा. अगर कैरेक्टर एक ही बारी है तो वही लास्ट है, वही फर्स्ट है बच्चा, ठीक है ना. स्मॉल एस, इट इज देयर. फाइन. केस सेंसिटिव है, 6th इंडेक्स पोजीशन पर स्मॉल एस है. स्ट्रिंग्स आपके सामने है बच्चा, ध्यान से देखना, इंडेक्स मार्क्ड है. आंसर इज 6. देखो स्मॉल एस कहाँ है, 6th इंडेक्स पोजीशन पर. लेट्स फाइंड पी. अब देखो यहां से आपको डिफरेंस आ जाएगा कि अगर ये इंडेक्स होता, दिस स्टेटमेंट वुड हैव लेड टू वैल्यू एरर, क्योंकि स्मॉल पी इज नॉट देयर, कैपिटल पी इज देयर इन माई स्ट्रिंग. बट क्योंकि सर्च जब फेल होता है, फाइंड रिटर्न्स -1. सी, दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर. फाइंड विल रिटर्न -1, इट विल नॉट रेज एनी एक्सेप्शन. एज इंडेक्स वाज रेजिंग वैल्यू एरर exception, find will not be raising it. Fine. Let's check. Now let's see कि हम जो है by default कर रहे थे 0th इंडेक्स से सर्च, अब करते हैं 4th इंडेक्स से. स्टार्ट इंक्लूडेड होता है, n 4th पर ही मिल जाता है. फर्स्ट अकरेंस n की 4th इंडेक्स से अगर मैं n तक देखूं, n इज अपेयरिंग फर्स्ट ऑफ ऑल एट इंडेक्स पोजीशन 4, तो मेरा आंसर 4 ही होगा बच्चा. इफ आई राइट 7, 10, अगेन माई दिस थिंग 7, 8, 9, ठीक ये है, और 9th इंडेक्स पर आपका n है, एक ही बार है, आंसर विल बी 9. लेट्स मूव टू द राइट साइड एंड ट्राई आउट दीज एग्जांपल्स. s dot r find of n. फाइन. नाउ चलो ये वाला कॉपी कर लेते हैं, चेंजेस कम करने पड़ेंगे. r find of n. सो व्हाट इट इज गोइंग टू लोकेट, n की लास्ट अकरेंस क्या है बच्चा, आप देख पा रहे हो n लास्ट कैरेक्टर है, 16th इंडेक्स पोजीशन पर है, आंसर इज 16. r find of in, अगर ये फाइंड होता तो इन के लिए आता 3, क्योंकि इन 3, 4 पर भी है और इन 8, 9 पर भी है. r find देगा बच्चा 8, क्योंकि ये 8th इंडेक्स पर लास्ट बार मिल रहा है. इन कॉमा 5, इफ आई से इन कॉमा 5, तो 5th इंडेक्स से ढूंढना शुरू करेगा इनको, जी से, यहाँ से 5th इंडेक्स से एक ही बार आ रहा है, एंड तक सर्च करना है, एक ही बार इन आ रहा है, वही फर्स्ट अकरेंस है, वही लास्ट अकरेंस है, आंसर वुड बी 8. Fine. R find of ring. Now this time I'm capitalizing the R of ring. और आप देखो क्योंकि ring नहीं मैच होगा, R small है, मैच नहीं होगा, बट वैल्यू एरर नहीं आएगी, -1 आएगा बच्चा, ठीक है ना. R find of I 3, 11. I 3, 11. अब देखो 3rd इंडेक्स पोजीशन पर ही आई है और 8th पर भी आई है. सो लास्ट अकरेंस किस पर है बच्चा, 8th पर. सो आंसर होगा 8th. ठीक. 3, 11 मीन्स 3 से 10 तक सर्च करेगा. फाइन. और आपको लास्ट अकरेंस देगा. अब आई को ढूंढा है हमने 4, 8. लेट्स सी क्या आई हमें मिलता है यहाँ पर. 4, 8 मार्क करो बच्चा. n से लेकर 4, 8 मीन 4, 5, 6, 7, बट आई तो 8th इंडेक्स पर था, ठीक है ना, एंड एक्सक्लूडेड होता है, तो 4, 5, 6, 7 पर आई प्रेजेंट नहीं है, आंसर विल बी -1. अगर ये आर इंडेक्स होता, आंसर वुड हैव बीन वैल्यू एरर.
Okay, so I hope these examples are clear and you have been able to understand the functioning of the the concept theoretically as well as the working practically of all these four functions, bacha. And if you have understood them, do give a thumbs up on this video. It's like it's an earnest attempt from my side to make you understand these methods. ये चारों methods आपको अच्छे से समझ में आ गए हों। और अब आपको एक प्रॉमिस और करना है कि आपको ऑल 4 पार्ट्स देखने हैं, क्योंकि थोड़े से मेथड्स और होते ही मैं आपके लिए फिर से स्ट्रिंग कोड सीरीज में लेटेस्ट कोड सीरीज स्ट्रिंग की जो मैंने स्टार्ट करा हुआ बच्चा, उसके एग्जांपल्स इन पर बेस्ड लाने शुरू कर दूंगा। सो टिल वी मीट अगेन, सी यू सून, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।